للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مہینہ ربیع الاخر کا مہینہ ہے، یعنی جسے ہم 11ویں شریف کے مہینے سے جو ہے نا یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11ویں شریف منائی جاتی ہے، تو ہم نے بارہا پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیانات سنتے آئے ہیں، اور آج کا یہ جو دن ہے خاص، اس کے حوالے سے میں کچھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ربیع الاخر کے یعنی اس 11ویں شریف کے مہینے میں 19 تاریخ کو 11ویں شریف کی 19 تاریخ کو حضرت صابر پاک علاء الدین علی احمد کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم ولادت ہے، یعنی آپ پیدا ہوئے سو دن کون حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے حوالے سے ہم اس سے پہلے بات سن چکے ہیں کہ غالباً پچھلے سال شاید 2 سال گزر گئے، یعنی جو یہ لاک ڈاؤن جو گزرا 2 سال، اس سے پہلے پہلا جو لاک ڈاؤن ہوا تھا بڑا، اس سے پہلے جو ہے نا میں جمعہ میں یا 11ویں شریف کے مہینے میں جو ہے نا صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے غالباً 2 یا 3 جمعہ بیان کیا تھا، جس میں ترتیب وار سب سے پہلے صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ولادت کی تاریخ، پھر ان کے حق میں جو ہے نا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پیشن گوئیاں، پھر جو ہے نا حضرت مولا علی مشکل کشا آپ کے بارے میں پیشن گوئی کیے تھے، وہ سنے تھے، پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے بارے میں پیشن گوئی کیے تھے، وہ سنے تھے، پھر اس کے بعد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیشن گوئی تھی، آپ نے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آ کر جو ہے نا بیان فرمائے تھے کہ اس طرح ایک بچہ جو ہے نا آپ کے یہاں پیدا ہوگا۔ یہ کون بولے تھے؟ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشن گوئی سنائے تھے۔ اب صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو ہے نا یہ پیران پیر کی اولاد میں سے ہیں۔ پیران پیر کے جو بیٹے ہیں حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، اور عبد الرحیم کے بیٹے ہیں صابر پاک، یعنی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ پڑ پوتے ہیں۔ بیٹے کون ہیں؟ عبد الوہاب، پھر ان کے بیٹے عبد الرحیم، یہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک کے پوتے ہیں، پھر عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ کا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں اولاد سے جو ہے نا خاص مقام ہے، آپ کے اولاد میں پیران پیر کے اولاد میں جو ہے نا ایک خاص مقام ہے۔ یوں تو پیران پیر کی ہر اولاد جو ہے نا آپ کے بیٹے یا آپ کے پوتے کامل اولیاء ہوئے، بڑے بڑے اولیاء کرام ہوئے، جن کے جو ہے نا فیضان سے اس امت میں کئی اولیاء اللہ پیدا ہیں، مگر صابر پاک کا مقام ایک نمایاں ہے، ایک الگ ہے، جن کی داستان جو ہے نا بالکل عجیب ہے۔ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی داستان، ان کا تذکرہ بالکل عجیب و غریب ہے، تمام اولیاء کرام میں عجیب و غریب ہے، اور آپ کا ایک اس امت کے اولیاء میں ایک خاص مقام ہے صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے، بہت ہی کم علماء بیان کرتے ہیں، اور بہت ہی کم پیران
पीरान कराम को जो है ना ये तस्करे मालूम है कि साबिर पाक तंजीर रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम मर्तबा क्या है। इससे पहले आपको याद होगा दो साल पहले जो है मैं इनके बारे में बयान किया था कि आपकी पेशन गोई, आपका मुकाम मर्तबा, आपकी विलादत के अहवाल तक जो है ना मैं बयान किया था। अब आपको मालूम है मेरा क्या है मामूल क्या होता है कि मैं हुजूर की जब दास्तान बयान करना शुरू करता हूँ तो सबसे पहले उनकी विलादत की तारीख, उनकी पेशन गोई, फिर उसके बाद जो है ना उनका बचपना, फिर उनके बाद जवानी का अहवाल, फिर उनके बाद जो है ना खिलाफत का अहवाल, फिर उनके खुलफा का अहवाल, इस तरह जो है ना उनकी विसाल तक तरतीबवार बयान करता हूँ। तो मैं पिछले साल जो बयान किया था वो यहाँ तक क्या था कि साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो है ना विलादत के वक्त के अहवाल, साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के विलादत के वक्त क्या क्या अहवाल हुए थे, क्या क्या वाक़यात पेश आए थे, ये तज़किरे जो है ना हम सुने थे। ये बयानात अब भी यूट्यूब पर जो है ना मौजूद हैं। साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के विलादत के वक्त क्या क्या वाक़यात पेश आए थे, ये बयानात यूट्यूब पर 2 या 3 नशिस्तें जो है ना हमारी मौजूद हैं। अगर कोई दोबारा उसे सुनना चाहता तो सुन ले, ताकि जो है ना ये आगे का मजमून जो है ना फिर आपको आसानी से समझ में आएगा और मज़ा आएगा सुनने में, फिर यानी याद जो है ना ताज़ा हो जाती इंसान की। इससे पहले के 2-3 बयानात यूट्यूब पर जो है ना मौजूद हैं कि आपकी पेशन गोई और आपके विलादत के अहवाल के बारे में और आपके ख़ानदान के बारे में किया है, पूरा नसब नामा जो है ना आपका बयान हुआ। अब साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के वाजिद माजिद हज़रत अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि साबिर पाक 6 महीने 40 दिन तक, साबिर पाक जो है ना अपनी विलादत के बाद, अब जो है ना विलादत के बाद, विलादत तक के अहवाल में बयान किया था पिछले साल, अब विलादत के बाद के अहवाल जो है ना आज बयान कर रहा हूँ। तो आप फरमाते हैं कि वालिद माजिद जब साबिर पाक पैदा हुए तो 6 महीने 40 दिन तक अपनी माँ का दूध नहीं पिए। कितने? 6 महीने 40 दिन तक जो है ना पैदा होने के बाद बच्चा दूध नहीं पिया, 6 महीने 40 दिन तक। तो वो इंतज़ार में थे कि बच्चा आज दूध पींगा, सवेरे पींगा, परसों पींगा, इस तरह जो है ना इंतज़ार में गुजारे उन्होंने, उनके बाप और उनके जो है ना ख़ानदान वाले, माँ वगैरह, कि बच्चा कितना भूखा रहकर भी कितना रह सकता है। तो आपकी करामत देखो, आपके यूँ तो जो है ना आपके इस दुनिया में पैदा होने से पहले से आपकी करामतें शुरू हुए थे। कई करामतें आपके जो है ना माँ के पेट में ज़ाहिर हुए थे। और बाक़ायदा पीराने पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पीराने पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है ना बाक़ायदा सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जो है ना सैयदा कायनात ने आकर पेशन गोई फरमाई थी पीराने पीर को कि जो है ना आपके यहाँ ऐसा एक बच्चा पैदा होगा। तो आपके जो है ना करामात विलादत से पहले ही शुरू हो चुके थे, मगर जब आप पैदा हुए तो पैदा होते ही आपके से जो है ना करामतों का सिलसिला शुरू हुआ कि देखें पैदा हुआ तो बच्चा कितना देर भूखा रह सकता है, 6 महीना 40 दिन, कोई मामूली ये बात नहीं है। 40 दिन सब जो है बता दो, 6 महीना 40 दिन तक। तो यानी आप जो है ना जब पैदा हुए तो साबिर बनकर ही पैदा हुए। अल्लाह ताला जो है ना सब्र उनकी तबीयत में, उनके नफ्स में रखकर पैदा किया था साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के। और आप जो है ना भूखा प्यासा रहना, रोज़ा रखना, ये सिफत जो है ना अल्लाह तबारक ताला की ख़ास सिफत अल्लाह ताला उनके अंदर रख कर पैदा किया था। 6 महीने 40 दिन तक पैदा होने के बाद अपनी माँ की छाती को जो है ना मुँह नहीं लगाए, दूध नहीं पिए, तो उन्होंने इंतज़ार करते रहे बच्चा आज पींगा सवेरे पींगा। तो फरमाते हैं हज़रत अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह कि हम लोग तो इंतज़ार करते रहे कि आज बच्चा दूध पींगा, सवेरे पींगा, परसों पींगा, मगर जो है ना इस इंतज़ार में 6 महीने 40 दिन गुजरे। उन अयाम में जो है ना उनकी माँ की छातियाँ जो है ना सूज गई थी। तो बच्चा पैदा होने के बाद अगर बच्चा दूध नहीं पिया तो क्या होता, माँ की छाती जो है ना वो दूध वाँच रह कर सूजने लग जाती। तो उसका इलाज मुआवजा कराते हैं हकीम से, या तो दूध बंद करवाते हैं या तो दूध जो है ना निकालना पड़ता, कुछ तो इसका इलाज करना पड़ता। अगर बच्चा किसी का पैदा होते इंतकाल हो गया तो औरत के दूध का इलाज करना पड़ता। तो उन्हें फरमाते हैं कि बच्चा है, सही सलामत है और दूध भी नहीं पी रहा, अगर हमें बंद कराए तो बच्चे की मुश्किल नहीं होना, वो जो है ना इंतज़ार करते रहे, मगर माँ की जो है ना सीने की हालत जो है ना ख़राब होती चलेगी, सूज आती चलेगी। तो फरमाते हैं हज़रत अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह बिल आखिर मैंने 592 हिजरी में
29 ज़िलक़ादा को नमाज मगरिब के बाद मुझे आलम मिसाल में जो है ना ख्वाब में एक हुक्म हुआ। क्या फरमाते हैं? 592 हिजरी में। अब साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत जो है ना 592 हिजरी 19 रबीउल आखिर को हुई थी, यानी शरीफ के महीने में 19 रबीउल आखिर को 592 हिजरी में जुमेरात के दिन तहज्जुद के वक्त आप पैदा हुए थे। तो फरमाते हैं 592 हिजरी में 29 ज़िलक़ादा का महीना था। तो नमाज मगरिब के वक्त मुझको एक हुक्म हुआ आलम मिसाल में जो है ना, एक यूँ समझ लो आपकी आसानी के वास्ते ख्वाब का समझ लो, आलम मिसाल जो है ना बैठे बैठे जो है ना एक आलम खुलता है, उसे आलम मिसाल औलिया अल्लाह की ज़ुबान में बोलते। तो फरमाते हैं आलम मिसाल में मुझे हुक्म हुआ, उस हुक्म के शुक्र में वो हुक्म होते ही वो हुक्म का सबसे पहले मैंने शुक्र अदा किया। क्या किया कि मैंने 4 रकात नमाज शुक्र अदा फरमाई आसार सब्र की अदायगी में। क्या फरमाते हैं? जो साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अल्लाह ताला जो सब्र उनके अंदर रख कर जो पैदा किया था, वो सब्र के आसार मुझ पर जाहिर हुए, तो उसके शुक्र में मैंने 2 रकात शुक्राना 4 रकात नमाज शुक्र जो है ना अल्लाह ताला की बारगाह में अदा किया। कौन बोल रहे हैं? साबिर पाक के अब्बा बोल रहे हैं, हज़रत अब्दुल रहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और साबिर पाक के चेहरे मुनव्वर पर बोसा देकर 21 मरतबा ये इस्म तिलावत किया। उनको एक हुक्म हुआ कि आप जो है ना ये बच्चा दूध नहीं पी रहा, तो आप लोग घर में सब उनकी माँ के वास्ते परेशान है, दूध ना बंद कर सक रहे ना बच्चे को ज़बरदस्ती पिला सक रहे, तो इस वास्ते क्या करो, एक हुक्म जो है ना उनको आलम मिसाल से जाहिर हुआ। वो किसके तरफ से हुआ? वो खुद पीराने पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला की तरफ से उनको हुक्म हुआ। वो हुक्म होते ही उन्होंने क्या करे, सबसे पहले 4 रकात नमाज शुक्र अदा करे, और जो आसार नजर आए थे साबिर पाक के सब्र के, उस पर जो है ना शुक्र अदा करके 4 रकात नमाज अदा करे। अदा करने के बाद 21 मरतबा उनको जो पढ़ने का वजीफा दिया गया था आलम मिसाल में, वो वजीफा जो है ना 21 मरतबा पढ़ कर जो है ना साबिर पाक पर दम करके जो है ना उनके पेशानी का बोसा लेते हैं। वो वजीफा क्या था? वजीफा उनको हुक्म हुआ था, या शेख अब्दुल कादर जिलानी शैअन लिल्लाह मदद बि इज़्निल्लाह। क्या? या शेख अब्दुल कादर जिलानी शैअन लिल्लाह मददी बि इज़्निल्लाह। या शेख अब्दुल कादर जिलानी आप जो है ना मदद फरमाए अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अता से, या शेख अब्दुल कादिर आप मदद फरमाए। ये जो है ना इस उनको जो है ना इशारा हुआ था, तो ये पढ़कर जो है ना बंद करो, तो उन पर दम करो। तब जो है ना उन्होंने क्या करे, ये इसम जो है ना 21 मरतबा तिलावत करके साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कल्ब पर दम करे, दम कर जो करके जो है ना उनके पेशानी का बोसा लेते हैं। तो महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की बरकत से उस दिन से साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दूध पीना शुरू किया। उस दिन से दूध पीना जो है ना शुरू किए। मगर आपका मामूल था जब दूध पीना शुरू भी किए तो एक दिन दूध पीते थे, एक दिन रोज़ा रखते थे। सुभान अल्लाह। देखो बच्चे के अंदर साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अंदर जो है ना अल्लाह ताला कैसी सिफत, और विलादत से ही माँ की गोद से ही जो है ना रोज़ा रख कर जो है ना पैदा होना, रोज़े की हालत में पैदा होना, और मुसलसल 6 महीने 40 दिन तक पैदा होने के बाद बच्चा वो रोज़े की हालत में गुजारना, फिर 6 महीने 40 दिन के बाद पीराने पीर रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम के बरकत से जो है ना उस नाम के असर से आप जो है ना दूध पीना शुरू किए। दूध पीना शुरू किए तो भी क्या करते थे, एक दिन दूध पीते थे, एक दिन रोज़ा रखते थे। हज़रत अब्दुल रहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके वालिद फरमाते हैं कि 1 साल तक यही मामूल रहा, 1 साल तक यही मामूल रहा। जब साबिर की उम्र दूसरे साल की हुई, जब दूसरे साल में कदम रखे तो दूसरे साल आपका मामूल था 1 दिन दूध पीते थे, 2 दिन रोज़ा रखते थे। रोज़ा रखने का पीरियड जो है बढ़ाते गया। 1 दिन दूध पीते थे माँ की गोद में, फिर 2 दिन रोज़ा रखते थे, 2 यानी 3 दिन में एक मरतबा समझो दूध पीते थे, 2 दिन रोज़े की हालत में गुजरते थे, अब तीसरा दिन आया तो दूध नोश फरमाते थे। फिर हज़रत अब्दुल रहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि साबिर से हर रोज़ माँ की गोद में रोज़ाना कम से कम 2 से 4 करामतों का ज़हूर होता था। कितने? 2 से 4 करामत माँ की गोद में जो है ना कम से कम 2 से 4 करामतें रोज़ाना ज़ाहिर होते थे उस बच्चे से, साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से। तो आप फरमाते हैं कि 594 हिजरी का ज़माना था, 7 रबीउल आखिर तारीख थी, मंगल का दिन था। सुबह की नमाज के बाद मैं मुराकबे में बैठा हुआ था। ये कौन फरमा रहे हैं? साबिर पाक के वालिद। 594 हिजरी में 7 रबीउल आखिर को मंगल के दिन सुबह
नमाज के बाद जो है ना मैं मुराकबे में बैठा हुआ था कि इतने में एक जो है ना सांप आकर मुझ पर गिरा। अब ये करामत बता रहे हैं साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की, उनके माँ की कौन सी करामत कैसी जाहिर हुई थी। तो सबसे बड़ी एक करामत उनके खास उनके ख़ानदान के वास्ते जो जाहिर हुई थी उसका तस्करा आपने किया है। फरमाते हैं मैं बैठा हुआ था मुराकबे में, तो एक सांप आकर जो है ना मुझ पर गिरा। मैंने आंखें खोलकर देखा तो एक भयानक शक्ल में सांप सर से लेकर उसकी दुम तक चीरा हुआ 2 टुकड़े होकर पड़ा हुआ था। चीर कर जो है ना 2 टुकड़े हो गया था और एक टुकड़ा उसमें से तड़प कर मुझ पर आ गिरा था और एक टुकड़ा नीचे गिरा हुआ था। और वो जो एक टुकड़ा जो नीचे गिरा हुआ था उस टुकड़े के पास साबिर पाक तशरीफ फरमाते। आप जो है ना 2 साल की उम्र में है, 2 साल की उम्र में है, अचानक इन मुराकबे की हालत में इन पर एक सांप है, वो भी कैसे चीरा हुआ है, सर से लेकर दुम तक 2 टुकड़े होकर, एक टुकड़ा उन पर पड़ा, एक टुकड़ा सामने गिरा हुआ है। और उस टुकड़े के पास जो है ना साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बच्चे हैं 2 साल की उम्र के, तो वहाँ बैठे हुए हैं। तो आप फरमाते हैं कि मैंने उस भयानक सांप को देखकर जल्द से जल्द जो है ना अपनी बीवी को जो है ना साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ को जगाया। आप फरमाते हैं मैंने साबिर की माँ को जगाया और दोनों टुकड़ों का मुआयना करवाया। ये उठाकर जो है ना उनको दिखा कि देखो इस तरह सांप जो है ना गिरा हुआ है, 2 टुकड़े हैं। तो साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा बयान फरमाते हैं कि मैं जैसे ही उठकर वो सांप को देखी तो मैंने जो है ना अपना ख्वाब अपने शोहर को सुनाई। क्या साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला की माँ बोलते हैं कि मैं जो है ना तुम्हारे उठाने से पहले एक ख्वाब देख रही थी। ख्वाब में मैं ये देखी कि साबिर जो है ना मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए, साबिर मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए हैं। लाकर फरमाते हैं कि अय माँ आज के बाद हमारे ख़ानदान में किसी को भी सांप तकलीफ नहीं देगा। क्या फरमाते हैं, आज के बाद हमारे ख़ानदान में किसी को भी न सांप तकलीफ देगा न किसी सांप का जहर मेरे ख़ानदान वालों पर असर करेगा। ये जो है साबिर पाक की करामत उनके ख़ानदान वालों पर एहसान, बतौर एहसान आपकी दुआ है। जो साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला के औलाद में से है उन्हें जो है ना कभी भी ना सांप काटता ना जो है ना किसी सांप का जहर उन पर असर करता। तो ये करामत जो है ना 2 साल की उम्र में जो है ना उनसे जाहिर हुई। जब ये उनके वालिद माजिद सुने, साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की माँ का जो है ना ये ख्वाब सुने, फिर जो है ना अपने को जो इशारा हुआ था और जो सांप आकर गिरा था वो सब सारा मामला देखे, तो वो उनकी माँ की जो है ना बताई हुई बात सुनने के बाद उन्होंने क्या करते हैं, वो सांप जो था वो दोनों टुकड़े लेकर जो है ना बाहर जाते हैं। बाहर जाकर जो है ना उस ज़माने के जो औलिया अल्लाह थे उनको बुलाते हैं। कम से कम 6-7 औलिया अल्लाह की जमात वहाँ जो है ना हाजिर होती है, जिसमें मोहम्मद बिन अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, मोहम्मद बिन अबुल कासिम गरगामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख अबुल बरक़ात रहमतुल्लाह अलैह, शेख अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख अबू मसूद, इस तरह जो है कई सूफी अकराम का औलिया अल्लाह का नाम है इस किताब में। तो फरमाते हैं उन तमाम औलिया अल्लाह को जमा करके जो है ना वो सांप भी उनको दिखाया और वो मेरी बीवी का ख्वाब भी दिखाया। दिखाने के बाद औलिया अल्लाह की वो जमात जो है ना तस्दीक करती है। क्या तस्दीक करती है, वो औलिया अल्लाह की जमात बताते हैं हुजूर ये सांप जो है ना कोई मामूली सांप नहीं, ये सांप का बादशाह है। सांप के अंदर जो है ना बादशाह रहता है, हर जानवर के अंदर उनका एक बादशाह मौजूद होता है। तो ये सांपों का तमाम सांपों का बादशाह है। इसे मारने की वजह से जो है ना तमाम के तमाम सांप जो है ना साबिर पाक से जो है ना अहद कर गए हैं कि हम आज के बाद आपके खानदान वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये आपकी जो है ना एक करामत थी बचपन में जो आपके वालिद माजिद जो है ना बयान फरमाए। फिर आप 3 साल की उम्र में दाखिल हुए, 3 बरस की उम्र में दाखिल हुए। जब साबिर पाक की उम्र मुबारक जो है ना 3रा साल जब शुरू हुआ तो आप अपने माँ का दूध पीना जो है ना खुद ब खुद बंद कर दिए। 2 साल तक दूध पिए, वो भी जो है ना पहले साल में 1 दिन पीते थे, फिर 1 दिन रोज़ा रखते थे, फिर दूसरे साल में 1 दिन पीते थे, 2 दिन रोज़ा रखते थे। फिर जब 3रा साल शुरू हुआ तो दूध पीना जो है ना बंद किए, मगर तेल या घी लगी हुई जो है ना रोटी जो है ना कभी कभी आप खा लिया करते थे, वो भी बिल्कुल थोड़ी खाते थे और कई दिन तक जो है ना रोज़ा रखते थे। और किताब में आया है शुरू में जो है ना 3 दिन का रोज़ा जो है ना आपका कंटिन्यू था। 3 दिन रोज़ा रखते थे, थोड़ी सी रोटी जो है ना हस्ब ज़रूरत खा लेते थे। और जब आप 4 साल की उम्र पे पहुँचे तो जब आपकी उम्र का जो है ना 4था साल शुरू हुआ तो अब जो है ना आपकी ज़ुबान मुबारक खुलने का वक्त आया, यानी बच्चा बोलना शुरू करता ना, बात करना शुरू करता। तो आपके वालिद माजिद हज़रत अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 596 हिजरी थी, 596 हिजरी थी। 21 रबीउल अव्वल का जो है ना महीना था, पीर का दिन था। तहज्जुद के वक्त मैं अपने मामूल के मुताबिक अपने जद का नाम जो है ना तिलावत करते बैठा हुआ था। आप जो है ना देखे
औलिया अल्लाह का मामूल पीरान पीर दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु की नाम की बरकत ऐसी है कि बड़े से बड़े औलिया इकराम भी जो है ना आपके नाम का विरुद्ध वजीफ़ा किया करते थे। या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह। आपका नाम जो है ना मैं बयान किया था परसों 11वीं के प्रोग्राम में बयान किया, फिर मजलिस के अंदर भी जो है ना बयान किया था। तो आप जो है ना इसकी दलील के साथ देखो कि पीरान पीर रजी अल्लाह ताला की नाम की बरकत की, साबिर पाक जो है ना दूध नहीं पी रहे थे माँ का, तो वो जो है ना परेशानी में उन्होंने क्या करे, उनको हुक्म ही क्या हुआ था, गौसे पाक रजी अल्लाह ताला के नाम की जो है ना तिलावत करके उन पर दम करने का हुक्म हुआ था। तो उस नाम की बरकत से जो है ना दूध पीना शुरू किया। तो आप फरमा रहे मेरा मामूल था हमेशा का, मैं अपने मामूल के मुताबिक जो है ना इलाही बहरुमत कुतुब रब्बानी गौस समदानी शेख मोहिउद्दीन अबू मोहम्मद सैयद अब्दुल कादर जिलानी महबूब सुबहानी मददी बि इज़्निल्लाह या मुसव्विर, इस तरह जो है ना उन्हें तिलावत करते बैठे थे। उनका वजीफ़ा है, किताब में जो है ना लिखा हुआ वजीफ़ा, साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा हुजूर ये नाम पीराने पीर का बतौर वजीफ़ा तिलावत करते बैठे थे। फरमाते हैं नमाज फज्र से पहले मखदूम अली अहमद साबिर ने नींद से बेदार होकर ब आवाज़ बुलंद सबसे पहले अपनी ज़ुबान से जो कलमा इरशाद फरमाया उसके अल्फाज ये थे। क्या फरमाए, अब बच्चा बोलने लगता है तो क्या बोलता है, कभी आ बोलेगा, कभी ऊ बोलेगा, कभी पा बोलेगा, कभी मम बोलेगा, कभी बा बोलेगा, कभी माँ बोलेगा, ऐसे अल्फाज आते हैं ना बच्चे की ज़ुबान से जब शुरू में बच्चा बातें करने लगता है। तो फरमाते हैं हज़रत अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह सुबह की नमाज के वक्त में देखा साबिर पाक जो है ना नींद से बेदार हुए और उनकी ज़ुबान से जो कलमा निकला, सबसे पहले जो उनके ज़ुबान में अकदर से जो अल्फाज निकले वो फरमा रहे थे ला मौजूद इल्लल्लाह। क्या फरमाए, ला मौजूद इल्लल्लाह का कलमा जो है ना उनकी ज़ुबान से सादिर हुआ। ला यानी क्या, नहीं, मौजूद यानी क्या, जो चीज़ है, इल्ला यानी सिवाय, अल्लाह यानी जो है ना अल्लाह तबारक तआला की ज़ात मुबारका। ला मौजूद इल्लल्लाह, आप जो है ना जब बोलना शुरू कर रहे हैं 4 साल की उम्र में, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है सिवाय अल्लाह की ज़ात के कुछ भी नहीं है, या अल्लाह के नूर के सिवा जो है ना कुछ भी नहीं है। जिसे अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ भी है ये सब का सब अल्लाह ताला का नूर है, ये अल्लाह का नूर है। आप फरमा रहे ला मौजूद इल्लल्लाह, इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है सिवाय खुदा के कुछ भी मौजूद नहीं है। आप फरमाते हैं हज़रत अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ये आवाज़ सुनकर मैं मुस्कुराता हुआ सजदे में गया और अल्लाह तबारक तआला का सबसे पहले शुक्र अदा किया। फिर सजदे से उठकर फिर 4 रकात नमाज बतौर शुक्र अदा फरमाया और बगदाद शरीफ की तरफ रुख करके मैंने दुआ की कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने साबिर की ज़ुबान से जो सबसे पहले कलमा कहलवाया है वो कलमा मौजूदगी का कहलवाया है। क्या कलमा मौजूदगी का कहलवाया है। अब ये जो है ना बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इसकी ज़्यादा शरह करना जो है ये नहीं है, हर किसी की बात नहीं है और हर किसी की समझ में आने वाली बात नहीं है। ये सूफिया इकराम की जो है ना ख़ास ज़ुबान है और ख़ास जो है ना अल्लाह तबारक तआला के राज़ों में से एक राज है। फरमाते हैं ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, बगदाद की तरफ रुख करके आपके वालिद दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने साबिर पाक की ज़ुबान से जो है ना जो सबसे पहले कलमा कहलवाया वो कलमाए मौजूदगी है, और ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपना दीदार कराया। क्या, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपना दीदार कराया। सिर्फ इशारे में जो है ना ये बात कहकर जो है ना आपने किताब में बात ख़त्म की है। यहीं पर जो है ना बात को छोड़कर मैं अब आगे रहता हूँ कि 4 साल की उम्र है, अब 4 साल की उम्र में साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ुबान से जब ये कलमा सादिर हुआ तो आप फरमाते हैं कि हर वक्त जो है ना कई मरतबा दिन में ये कलमा जो है ना उनकी ज़ुबान पर जारी रहता था। थोड़ी थोड़ी देर में जो है ना बच्चा बोल रहा है, 4 साल की उम्र में बच्चा जब बोलना सीख रहा है तो हमेशा जो है ना ज़ुबान मजबूत होने तक यही कलमा दोहराते रहे, कई दिनों तक जो है ना ला मौजूद इल्लल्लाह, ला मौजूद इल्लल्लाह, ला मौजूद इल्लल्लाह का जिक्र जो है ना आपकी ज़ुबान पर जो है ना उस 4 साल के बच्चे पर जारी था। फिर आप फरमाते हैं हज़रत अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी मेरा बेटा साबिर ये कलमा तिलावत करता था तो उस पर एक अजीब हाल तारी होता था, एक अजीब हाल तारी होता था और दिन रात में 7 मरतबा काबतुल्लाह की तरफ रुख करके साबिर सजदा किया करते थे। सुभान अल्लाह। देखो 4 साल का बच्चा है और हमेशा ज़ुबान पर क्या जारी है, ला मौजूद इल्लल्लाह का विर्द जारी है और दिन और रात में मिलाकर 7 मरतबा जो है ना काबतुल्लाह की तरफ रुख करके वो सजदा किया करते थे 4 साल की उम्र में। तो कब कब वो भी लिखे हैं, एक सुबह को, फिर एक दोपहर में, फिर एक सहपहर में, यानी
दोपहर और असर के दरमियान जो वक्त आता है ना उस वक्त, फिर असर के वक्त एक, फिर मगरिब के वक्त, फिर इशा के वक्त, फिर तहज्जुद के वक्त, यानी नमाजों का जो वक्त होता है ना, सुबह का, दोपहर का, ज़ोहर का, असर का, मगरिब का, इशा का, ये तमाम अय्याम में जो है ना साबिर पाक जब भी नमाज का वक्त होता था तो ये कलमे के साथ जो है ना काबतुल्लाह की तरफ रुख करके एक सजदा किया करते थे 4 साल की उम्र में। तो सोचा अल्लाह तबारक तआला कैसा मुकाम मर्तबा अता किया होगा। साबिर पाक रहमतुल्लाह तआला के बचपन से यह हाल था, तो कितनी अजीम शख्सियत होगी, कैसा मुकाम मर्तबा होगा। तो आप फरमाते हैं रात में जो है ना बहुत कम सोया करते थे साबिर पाक, रात के वक्त बहुत जो है ना कम सोया करते थे और नींद की हालत में अचानक चौंक पड़ते थे। यानी आपको जो है ना मुशाहिदात होते थे, वैसे अल्लाह तबारक तआला की तरफ से जो है ना बचपन से ही मुशाहिदात होते थे, बचपन से ही कुछ कुछ जो है ना नजर आता था, इल्हामात होते थे। तो उस हालत में जो है ना चौंक कर उठते थे, और जब भी उस हालत में चौंक कर उठते थे तो आपका चेहरा जो है ना सुर्ख होता था, आपका चेहरा सुर्ख हुआ करता था। आपको मालूम है, याद होगा कि मैं बयान किया था कि गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो पेशन गोई हुई थी और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को जो पेशन गोई हुई थी, आप फरमाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद मुबारक में जो है ना 2 रूहें आकर बैठी थी। एक जो है ना रूह का रंग जो है ना सब्ज था और एक रूह का रंग जो है ना सुर्ख था। याद है, बता था इस कलर का रंग, यानी सुर्ख रंग जो है ना ये पीराने पीर गौस आज़म दस्तगीर रजी अल्लाह तआला का, और ये सुर्ख रंग जो है ना सब्ज रंग पीराने पीर का, और सुर्ख रंग साबिर पाक रहमतुल्लाह तआला अलैहि को बताया था। तो पैदा होने से पहले भी ये रंग दिखाया गया था, और आपके पैदा होने के बाद भी जो है ना आपका जब जिक्र में भी चेहरा बदलता था तो सुर्ख रंग होता था। तो ये जो है ना सुर्ख रंग जो है ना इसमें थोड़ा मरून कलर, कॉफी कलर मिक्स होता है। ये कलर जो है ना साबिर पाक रहमतुल्लाह तआला अलैहि का, जो हमें मानते हैं ना आवाम मरून कलर का एक कपड़ा जो है साबरी कलर, ये साबरी कलर है। ये जो है ना अल्लाह तबारक तआला की तरफ से उन्हें अता हुआ है। जैसा हरा रंग गौसे पाक रजी अल्लाह तआला को अता किया गया है, इस तरह साबिर पाक रहमतुल्लाह तआला अलैहि का और सुर्ख रंग जो है ना अता किया गया है। फिर आगे आता है कि शेख नजमुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह, शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह तआला अलैह, इस तरह के बड़े बड़े जय्यद 8 औलिया इकराम जो है ना अपने मकतूबात में लिखे हैं। क्या लिखते हैं कि रात और दिन मिलाकर कुल 8 पहर में 2 से 4 मरतबा साबिर पाक के चेहरे का रंग जो है ना सुर्ख होता था। पूरे के पूरे रात और दिन के मिलाकर 8 पहर मिलाकर जो है ना हमेशा जो है साबिर पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह का रंग 2 से 4 मरतबा तो भी, यानी दिन और रात में कम से कम 2 या 4 मरतबा आपके चेहरे का रंग जो है ना सुर्ख हो जाता था। और जो है ना आपके दहन मुबारक पर ज़बान से जो है ना होंठ से कफ निकलता था, झाग निकलता था। ऐसी जो है ना तपिश जिस्म के अंदर जो है ना अल्लाह के जिक्र के उनके अंदर पैदा होती थी। 4 साल की उम्र में बच्चा जब जिक्र करता तो क्या होता होगा, क्योंकि बच्चों के अंदर जो है ना रूहानियत ज़्यादा रहती। सबसे ज़्यादा रूहानियत अल्लाह तबारक तआला की नूर की तजल्ली, उसके जलवे जो है ना सबसे ज़्यादा बच्चे के अंदर रहते हैं, मासूम। फिर उसके बाद जो है ना जवान होने के बाद औरतों के अंदर रहते हैं। जब बच्चा है, औरत लड़की हो या लड़का हो, बच्चों के अंदर जो है ना 12 साल के अंदर तक अल्लाह तबारक तआला की तजल्ली बहुत कम करती। फिर उसके बाद जब जवान होता है ना बच्चा, जैसा जैसा जवान होता है, बालिग होता है, तो उसका रुजू जो है ना दुनिया की तरफ होते जाता है। फिर दुनिया की रंग रलियाँ, दुनिया के जो है ना ख्वाहिशात, अच्छे बुरे में, गाली गलौज में पड़ता है, तो रूहानियत जो है ना दबते चली जाती। जब दुनिया उसके ऊपर जो है ना नफ्स गालिब आती जाती, जब फिर उसे मेहनत करके अपने नफ्स को मार कर जो है ना अल्लाह ताला के जिक्र से जब पाक करता है, तो फिर वो वापस जो है ना रूहानियत दोबारा जिंदा करके वापस तबीयत के अंदर लाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा रूहानियत जो है ना 10 साल तक बच्चे के अंदर ज़्यादा रहती है। फिर उसके बाद जो है ना जवानों में अगर देखें तो औरत के अंदर सबसे ज़्यादा रहती है अल्लाह ताला की तजल्ली, उसकी नूरानियत। फिर उसके बाद जो है ना 40-50-60 साल के बाद जो है ना मर्द अगर तकवा परहेजगारी वाला हुआ, सारी ज़िंदगी दीन की मेहनत में, दीन के वास्ते जिक्र अस्कार में गुजारा, तो उसके अंदर वो रूहानियत पैदा होती है वापस। फिर जो है ना उसके चेहरे का रंग खिलता जाता है। जैसा जैसा बुजुर्ग की तारीफ होती है ना, बुढ़ापा आते जाता है ना, चेहरा खूब रोशन होते जाता है। आप देखो मरने वालों को देखो या बूढ़े लोगों को देखो, जैसा जवानी में शक्ल चेहरा रहता नहीं, वो खूबसूरती मरते वक्त या बुढ़ापे में कायम नहीं रहती। क्योंकि जो है ना जैसी ज़िंदगी गुजारे जवानी में, जैसे खसलता करे ना, वैसा चेहरा होता मरते वक्त, है कि नहीं? मुशाहिदा गौर करके देखो बूढ़े लोगों को, बुजुर्गों को। अगर ज़िंदगी सारी अच्छे अमल में, नेक अमल में, अल्लाह की इबादत में गुजारा है, तो उसका चेहरा जैसा जैसा उन्हें बूढ़ा होते रहता है, चेहरा खिलते जाता है, रौनक आती है, चेहरे पर एक अजीब नूर आते जाता है। यहाँ तक कि मरने के बाद भी उसके चेहरे का नूर सल्ब नहीं होता, नूर जो है सल्ब नहीं होता, वो कायम रहता है और ज़्यादा निखरता है। इस वास्ते जब तक जवानी कायम है, जवानी में अपने अमाल को दुरुस्त रखने की कोशिश करना। एक बार अमाल बद हो गए, बुरे हुए, एक बार चेहरा बिगड़ गया, तो फिर वो वापस नहीं आता। नफ्स ऐसा गालिब हो जाता इंसान के ऊपर,
تب جو ہے نا وہ واپس جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نور کی طرف سے رجوع کرنے کا موقع نہیں ملتا. یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جو بچپن میں جوانی میں جو حسن ہمارا دیتا ہے نا، ہمارے چہرے کا ظاہری حسن کی بات کر رہا ہوں، اندر کی نہیں باطن کی نہیں، ظاہری حسن جو ہے نا شکل صورت جو دیا رہتا ہے نا اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ بندہ کیا کرتا ہے، انسان کیا کرتا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے اسے بگاڑ لیتا ہے. اور ایسا بگڑتا ہے، ایسے ہوتے ہیں چند لوگ مرتے وقت اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، ایسے ہو کر مر جاتا ہے. مرنے کے بعد چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، ایسا ہو جاتا ہے. اس واسطے اعمال اگر درست رکھے بندے کے تو وہ چہرہ جو ہے نا لوگ شوق سے آ کر جو ہے نا خوشی سے دیکھ کر درود پڑھتے جاتے ہیں کہ کیا کتنا روشن چہرہ تھا. مرنے کے بعد بھی چہرے پر تعریف کرتے نا کئی لوگوں کے جو ہے نا ایسا بھی معاملہ تھا. تو یہ خیال رکھنا کہ جوانی جو ہے نا اپنے اچھے کاموں میں ذکر اذکار میں صرف کرنے کی کوشش کرنا. پھر جو ہے نا یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے نا جو ذکر کرتے تھے آپ کی حالت جو ہے نا بے خود ہوتی تھی. دن میں 7-8 مرتبہ جو ہے نا یہ پہر جو ہے نا 7-8 جو پہر ہے پورے رات اور دن کے کم سے کم 2-4 مرتبہ آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہوتا تھا اور زبان منہ سے جو ہے نا ایک جھاگ نکلتی تھی اور آپ ایسے غافل پڑے رہتے تھے کہ دنیا کی نہ انہیں ہوش رہتی تھی، دنیا کی کچھ بھی ہوش نہیں رہتی تھی. ایسے غفلت کی حالت میں جب تک آپ کا احوال دوبارہ بحال نہیں ہوتا تھا تب تک جو ہے نا ایک بے ہوشی کے عالم میں پڑے رہتے تھے. کتنے سال کی عمر کی بات ہو رہی؟ 4 سال کی عمر کی بات ہو رہی. تو اس حالت میں اگر کوئی صابر پاک کو ہاتھ لگاتا تھا تو کیا دیکھو اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کی لا موجود الا اللہ کے کلمے کی حرارت ہے. صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ جب یہ ذکر کر کے جو ہے نا چہرے کا رنگ بدل کر جب بے ہوش کی حالت میں پڑھتے تھے، اگر ایسے وقت کوئی ولی بھی جو ہے نا نیک وقت بزرگ بھی جا کر صابر پاک کے جسم کو ہاتھ لگاتا تھا تو فرماتے ہیں اس زمانے کے اولیاء اللہ جب صابر کے جسم کو کوئی ہاتھ لگاتا تھا تو اس کے جسم سے جو ہے نا ایک آگ پیدا ہوتی تھی. کیا یعنی ایک حرارت، ایک گرماہٹ ایسی پیدا ہوتی تھی کہ اس ہاتھ لگانے والے کے جسم میں بھی وہ جلن پیدا ہوتی تھی اور وہ خود بھی بے خود ہو جاتا تھا. تو انہوں کیسا برداشت کرتے تھے ہوں گے اس زمانے کے جوان بزرگاں اولیاء کرام ولایت کے مقام والے بھی اس حالت میں جا کر صابر پاک کو پکڑتے تھے تو کیا ہوتا تھا، ان کے اندر بھی وہ ذکر کی حرارت جلن پیدا ہوتی تھی اور خود کو جو ہے سنبھال نہیں سکتے تھے. تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کے جسم کے اندر کیسی قوت رکھا رنگا کہ اس کے نام کے ذکر کو جو ہے نا سنبھالنے کی، اس کی حرارت کو، اس کے نور کو برداشت کرنے کی. تو صابر پاک جو ہے نا ایک عجیب مقام والے ولی اللہ میں سے ہے، ایک عجیب مقام ہے آپ کا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ہے نا نظام جب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمایا تو اس وقت جو ہے نا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اولیاء ہے ان میں خاص جو اولیاء ہے جن کے نام ہم بار بار لیتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، نظام الدین اولیاء کا نام آتا ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. تو یہ تمام اولیاء اللہ میں جو ہے نا محبوب سبحانی کے بعد، غریب نواز کے بعد جب اگر کسی کا مقام مرتبہ اگر ہے تو وہ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. مگر یہ جو ہے نا پوشیدہ ہے، یہ پوشیدہ ہے. اب جوں قیامت نزدیک آئے گی راز ایک ایک کھلتے جائیں گے اور بتانے والے جو ہے نا آخر تک بتاتے رہیں گے. تو فرماتے ہیں اگر صابر کی اس بے خودی کے حالت میں کوئی بزرگ کوئی ولی بھی جا کر انہیں ہاتھ لگاتا تھا تو وہ خود بھی بے خود ہو جاتا تھا اور اسے جو ہے نا اس کی ذکر کی گرماہٹ کی جلن جو ہے نا جسم میں برداشت نہ ہوتی تھی. جب صابر پاک ہوش میں آتے تو آتے ہی سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلتا شکر الحمدللہ یا غوث اعظم دستگیر. کیا فرماتے تھے؟ جب بھی ایسی بے خودی کی حالت میں سے جب باہر نکلتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ شکر الحمدللہ یا غوث اعظم دستگیر کے کلمات سب سے پہلے ان کی زبان سے نکلتے تھے. کیوں آپ کے جو ہے نا جد ہیں، آپ کے پردادا ہیں صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا ہیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ. جب صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 5 سال مکمل ہونے کے لیے ابھی 2 دن باقی تھے، یعنی سمجھو لگ بھگ 5 سال مکمل ہو رہے ہیں، یعنی 597 ہجری میں 17 ربیع الاول کو پیر کے دن نماز ظہر کے بعد حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے نا پیٹ میں درد شروع ہوا. ناف کے نیچے جو ہے نا بومبی بولتا ہے، ناف کے نیچے انہیں درد شروع ہوا. تو ایسا درد شروع ہوا وہ درد بڑھتا ہی گیا. لوگ جو ہے نا ان کے ہم اثر اولیاء کرام وغیرہ سب پریشان ہوئے، ان کے دوست احباب چاہنے والے جمع ہوئے کہ ایسا جو ہے نا کثرت سے درد شروع ہوا، کیا کریں گے علاج. تو آپ بھی جو ہے نا جب اس درد کی حالت میں پڑے تھے، کون یہ آخری بات ہے بتا کر جو بات ختم کروں، وقت ہو چکا. صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد نے ایسے درد کی شدت میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہین اللہ مدد باذن اللہ، مدد باذن اللہ، یہ وظیفہ جو آپ کو ملا تھا عالم مثال سے وہ تلاوت کرتے تھے
اور بستر پر لیٹے ہیں پڑے ہیں، تمام لوگ پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے، درد کثرت سے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو آپ جو ہے نا کئی اولیاء کرام جو ہے نا 4-5 اولیاء اللہ مل کر جو ہے نا مشورہ کرتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے، چاروں مل کر جو ہے کیا کرتے ہیں، صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جاتے ہیں۔ 5 سال کے بچے ہیں، آپ کو معلوم تھا کہ بچپن سے ہی جو ہے کرامتوں کا زور ہے، اللہ کا ولی ہے، علاج ہوا تو ان کے پاس ہونا، وہ کیا کرتے ہیں، صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جاتے ہیں، جا کے بولتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد کی طبیعت جو ہے بہت خراب ہے، درد جو ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے، آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کرے۔ جب یہ جملہ بیان فرماتے ہیں تو حضرت صابر پاک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار ہو رہی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار ہو رہی ہے اور آسمانوں پر ایک شور و غل ہے، آسمانوں پر جو ہے ایک شور و غل ہے جو میرے کان میں اس کی آواز گونج رہی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ 5 سال کا بچہ ہے، کیا فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار ہو رہی اور آسمانوں پر جو ہے ایک شور و غل ہے، اس کی آواز جو ہے میں سن رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص خرقہ لے کر تشریف لا رہے ہیں اور وہ خاص خرقہ وہ آ کر میرے والد کو پہنائیں گے اور اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے۔ کیا؟ اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے، دعا کا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ دعا کا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یعنی ان کا آخری وقت ہے، ان کی روح جو ہے قبض ہونے کا یہ پیشن گوئی فرماتے ہیں۔ جیسا ہی آپ کے زبان اقدس سے یہ کلمات نکل رہے ہیں صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، ادھر جو ہے ان کے باپ کی روح قبض ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ مبارک کلمات نکلتے ہی ان کے والد ماجد کی جو ہے روح قبض ہوتی ہے۔ جس وقت یہ کراماتی کلمات آپ کے زبان اقدس سے ظاہر ہوئے تو آپ کے والد ماجد حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پرواز کر جاتی اور اس گھر میں اور سارے شہر میں ایک عجیب خوشبو پھیل جاتی، سارے گھر میں اور سارے شہر میں ایک عجیب خوشبو پھیلتی اور تمام لوگ جو ہے اس خوشبو کو سونگتے سونگتے جو ہے ان کے گھر پاس آ کر جمع ہونے چلتے ہیں، کیونکہ سواری صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی آئی تھی، روح کو لے جانے کے واسطے خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم تشریف لائے تھے، تو وہ خوشبو تھی سارے شہر میں پھیلی ہوئی تھی۔ تو ان کے ایک چاہنے والے عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص چاہنے والے جو ہے فرمایا جاتا ہے ان کا گھر کافی دور تھا، تو وہ جو ہے اس خوشبو کو سون کر جو ہے پریشان ہو کر دوڑ کر ان کے گھر چلے آئے۔ آنے کے بعد ان کا نام ہے حضرت ابو احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آ کر دیکھتے ہیں، جنہیں جو ہے بہت محبت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے، آ کر دیکھتے ہیں اور جو ہے آنسو بہاتے ہیں، بہانے کے بعد جو ہے انہوں جو ہے آپ کو غسل دیتے ہیں۔ کون؟ حضرت ابو احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صابر پاک کے والد ماجد عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غسل دیتے ہیں۔ غسل دینے کے بعد شیخ رضی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں جو ہے ان کو قبر میں اتارتے ہیں۔ اتارنے کے بعد اس جنازے کے اندر 14 کاملین اولیاء اللہ اور 15 جو ہیں ان کے کامل مرید اس جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں عوام جو ہے آ کر اس جنازے میں شریک ہوتی ہے۔ 597 ہجری میں 17 ربیع الاخر کو پیر کے دن نماز ظہر کے بعد مرتبہ جبروت میں حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ تو اس وقت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو ہے 5 سال کی تھی، 1 یا 2 دن کم تھے، 5 سال کی عمر تھی۔ آپ جو ہے وصال فرما گئے حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ کون ہے؟ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے کا نام ہے حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے حوالے سے آج ہم بیان سنے۔ آج ان کی ولادت کا دن تھا۔ کیا؟ ان کی صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کا دن تھا، تو اس حوالے سے آپ کی ولادت اور آپ کے جو ہے بچپن کے احوال جو ہے میں بیان کیا۔ اس سے پہلے کے 2-3 جو ہے بیانات آپ کے پیشن گوئی کے بارے میں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، وہ بھی سنو، ایک بار یاد دہانی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جوانی کا عالم اور پھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانقاہ میں جانا، وہاں تربیت حاصل کرنا، پھر وہاں جو ہے 12 سال 17 سال یا 19 سال تک آپ کا روزہ رکھنا، وہ پھر اس کے بعد کلیئر آنا، یہ سارے احوال جو ہے انشاءاللہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا تو میں آگے بیان کروں گا۔ جو کچھ بھی سنے ہم نے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں کچھ بھی غلطی خامی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔